So today we will be discussing about center-state relationship. So first point is why we created federation. Because since ancient times, India was a federation during the Mauryan times, Gupta times, and also during the British times. We needed federation because of its size and diversity. India has huge diversity, and the size of India is also very large. So that is why we needed federation. So in federation, the question will be mostly about the cooperative federalism and where the reforms are needed. So why India opted for federation? The first point is, and our federation, everybody knows that our federation is of different United States of America, or where the true federation is there. In Indian Federation, uh, we have features of a strong union government. So हम लोगों ने क्यों चुना स्ट्रॉन्ग सेंटर? उसका तीन कारण है. At the time of independence, India was facing the problem of partition. ये तीन कारण आपको पता होना है. At the time of independence, we are facing the problem of partition, and the second was India constitutes more than 550 princely states. So integration of princely state was a big question. And the other reason was the secessionist tendency in different parts of India. Mostly in Northeast, the states wanted to separate from India, and that is why we have chosen a strong federation. So three reasons you should know why we have chosen a strong center. And the number one is India was facing the problem of partition. Number two, integration of princely state. And number three, the secessionist movement going on in different parts of India, mostly in Northeast. So in my notes that I have given in the group, I have listed down the unitary features of India. The first is that states do not have their own identity. उन लोग का अपना आइडेंटिटी नहीं है. उसका दो एग्जाम्पल है कि जब मायावती वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उस समय उन्होंने अपना असेंबली में उत्तर प्रदेश को फोर स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था, पर यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं किया. यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी डिसीजन. And the second example is that Andhra Pradesh Assembly passed a resolution not to divide Andhra into Andhra and Telangana, but still center went away with their decision and divided the state into two states. Okay, so unitary features, first number one is states do not have their separate identity of their own. और दूसरा यूनिटरी फीचर ये है इमरजेंसी प्रोविजन. जो तीनों टाइप का इमरजेंसी है, जब भी वी इम्पोज इमरजेंसी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, इंडिया बिकम ए यूनिटरी गवर्नमेंट. इमरजेंसी सबको पता है कि थ्री टाइप होता है. आर्टिकल 352, 356, 360 में होता है. तो इमरजेंसी जो है वो एक यूनिटरी फीचर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और दूसरा है रोल ऑफ गवर्नर. इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ गवर्नर में कि हम लोग गवर्नर क्यों क्रिएट किया. क्योंकि गवर्नर दे आर अनइलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और वो लोग स्टेट गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करता है. तो गवर्नर का रोल जो है वो यूनिटरी फीचर्स का एक एग्जांपल है. अभी इसमें जो लोग है उसमें से कोई बताएगा कि गवर्नर का रोल जो है इतना कंट्रोवर्शियल है, उसमें क्या रिफॉर्म लाने से होगा? Anybody? What are the reforms needed to make the office of the governor a responsible position or a responsible seat? हम लोग तो डिस्कस करते हैं ना. ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आपका मेंस में ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पेपर 2
में भी आएगा, और ये जीएस पेपर 2 में भी आएगा। फेडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे तो अच्छा है। मैंने इसको अच्छे से, कोई बताएगा व्हाट आर द रिफॉर्म्स नीडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर? गवर्नर हमेशा सेंटर का एजेंट जैसा वर्क करता है। आज तो कोई बोल नहीं रहा है, क्या हुआ? गवर्नर का इशू होगा, हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। देन द अदर यूनिटरी फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। तो यूनिटरी फीचर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टेट्स डू नॉट हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी। स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट दे डू नॉट हैव देयर सेपरेट आइडेंटिटी। उसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा था, मायावती गवर्नमेंट का और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन है, आप लोग सबको पता है। जहां मुझे लगेगा कि ये ऑब्वियस है वो मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। तीसरा यूनिटरी फीचर है द रोल ऑफ द गवर्नर। एंड थर्ड इज सिंगल सिटीजनशिप। इन यूएस देर आर डुअल सिटीजनशिप, वन सिटीजनशिप फॉर द स्टेट्स एंड वन सिटीजनशिप फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, वो भी यूनिटरी फीचर्स है। और जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिटरी फीचर्स का और फेडरेशन का, तो हम लोग यूएस और यूके का एग्जांपल लेंगे। यूके जो है होमोजेनियस कंट्री है, और वहाँ पे यूनिटरी फीचर्स है। और यूएस जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद यूनिटरी फीचर्स है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, सिंगल इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट सेंटर करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो लोग स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है। एंड स्टेट्स डू नॉट हैव एनी रोल इन देयर अपॉइंटमेंट। ये एक इशू है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट है, बट स्टेट्स डू नॉट हैव एनी से, कोई से ही नहीं है उनके अपॉइंटमेंट में। तो ये एक रिफॉर्म नीडेड है। और ए सिंगल कैग, सीएजी जो है वो स्टेट का अकाउंट्स भी मेंटेन करता है और स्टेट्स का पूरा ऑडिट भी करता है। और वो स्टेट्स का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, स्टेट्स का ऑडिट कर रहा है, पर उसका अपॉइंटमेंट यूनियन गवर्नमेंट ही करता है। मोस्टली आईएएस ऑफिसर को सीएजी बनाया जाता है, और ऑफिसर्स ऑफ द सीएजी आईएएस ऑफिसर्स, वो भी यूपीएससी के थ्रू आता है। तो ये भी एक इशू है यूनिटरी फीचर्स का। और आप लोग को तो पता ही है, द रेजिडुअरी पावर आर विद द यूनियन गवर्नमेंट। And composition of Rajya Sabha is also one of the unitary features. In Rajya Sabha, states are not equally represented. In US, in the Senate, there are each states are equally represented. 2 seats are there from each states. So ये भी यूनिटरी फीचर्स है कि स्टेट्स को भी हम लोग इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, पता है आईएएस आईपीएस और जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, इट इज रिक्रूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, बट दे वर्क अंडर द state government, and state government cannot remove them from their service. This is also one of the contentious issue in center-state relations. Mostly we will discuss the contentious issue and what are the reforms needed, and you have to write that only. And one question will be there from cooperative federalism, वो भी आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, व्हाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इश्यूज इश्यूज और रिफॉर्म्स नीडेड जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में है,
उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 356, इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। तो कोई बताएगा आर्टिकल 356 मोर देन 100 टाइम्स हम लोग लगा चुका है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म जरूरत है आर्टिकल 356 में? कोई बताओ, somebody should speak, otherwise it is like Sir, it is borrowed from the 1935 Act and it has yes. been implemented more than 140 times now. Okay, 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 And it is okay, you used. have the letter. You have the. Hello. Hello, hello, audible. Hello. What? It is used more than 140 times then. In this article 56, you will get question in hands every year. Sir, it is suspension of the state government and direct imposition of the central government Hmm. by the advice of the president, Hmm. based on the breakdown of Okay, constitutional my question machinery is of the. Hello. okay, okay, constitutional. My question is this. Hello, So your voice am is I breaking, audible? sir. Sir, your voice is breaking. Okay, what happened? Hello, Prince. सुना? There is some network issue. I will fix it within 2 minutes. Please wait.
Now it must be audible. There was problem in my network. Yes, so now your video is Yes, clearer. sir. Okay, the first point that we will discuss is Article 356. You were explaining. Can you explain again? Yes, so Article 56 should not be used as a sword. Instead, it should be used as a shield. It has been used more than 140 times now, and most of the times for not the reason which it should be used for. It is used when. There is breakdown of constitutional machinery, Yes, and the sir. breakdown is constitutional machinery is not defined in the constitution. So in they dismiss the government without any reason, na? But my question is that if Article 356 is imposed in the state, क्या state dissolve हो जाएगा? State assembly dissolve हो जाएगा? This No. question was there in 2-3 years back in UPSC prelims paper. If Article 356 is imposed in the state, क्या state assembly dissolve हो जाएगी? No, sir. नहीं होती है यार. So what are the provision? क्या provision है? स्टेट का नो कॉन्फिडेंस अगर पास हुआ तो फेल होगी ना. No confidence का इसमें कुछ है It नहीं. remains in a suspended animation group. सस्पेंडेड एनिमेशन ये ऑप्शन में भी रहेगा. अगर आर्टिकल 356 अगर स्टेट में इम्पोज्ड होता है तो वो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगा, और जब तक पार्लियामेंट रेटिफाई नहीं कर दे तब तक असेंबली डिसॉल्व नहीं होगा. ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है प्रीलिम्स में. ये एसआर बोम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1993 में. When Article 356 is imposed in the state, then state won't be dissolved. It will be under suspended animation, and after the ratification of the parliament only, the state assembly can be dissolved. ठीक है. So what are the आजकल हम लोग Article 356 सुनते नहीं कहीं पे. तो एसआर बोम्बई केस आपको पता होना, ये आपको हर जगह लिखेगा. कोई बताएगा एसआर बोम्बई केस में क्या क्या जजमेंट था आर्टिकल 356 से रिलेटेड? एक तो होगा इट शुड बी केप्ट अंडर Judicial सस्पेंडेड review. एनिमेशन. President action can be judicial review open होगा. yes judiciary can review the decision. ये दूसरा पॉइंट है. तीसरा है कि राजभवन शुड नॉट बी द प्लेस वेयर द मेजोरिटी इज चेक. द मेजोरिटी इज चेक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. ये 3 पॉइंट आपको हमेशा लिखना है. एंड समटाइम डायरेक्टली एसआर बोम्बई केस एंड इट्स रिकमेंडेशन आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, so you should know these 3 things. And the other आप लोग को तो पता होगा ये भी, the tendency of the union government. अच्छा, the role of all India services, इस पे क्या रिफॉर्म होना चाहिए कि वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल ना करे? इस पे इशू क्या है? द ऑल इंडिया सर्विसेज आर रिक्रूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और उनके अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का साइन होता है, तो उनको प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट सीएम सिर्फ सस्पेंड कर सकता है. तो वो लोग अपने यूनिलेटरली भी वर्क करता है. वो लोग हमेशा दे डोंट लिसन टू द चीफ मिनिस्टर समटाइम्स आल्सो बिकॉज दे कैन नॉट बी रिमूव्ड. सो आपका क्या ओपिनियन है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या रिमूव कर देना चाहिए फेडरलिज्म के लिए कि नहीं करना चाहिए? जितना भी कमीशन अभी तक आया है, सिर्फ राज मन्नार कमीशन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था, वही इसको रिकमेंड किया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज को रिमूव कर देना चाहिए. पर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑल इंडिया सर्विसेज के ये करने के लिए जितना भी, जब मायावती वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डीएम वेयर स्टेट पीसीएस ऑफिसर.
समटाइम वो लोग इतना फेड अप हो जाता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को हटा ही देता है, दूसरा दूसरा काम में ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्टर, कभी कुछ ये सब पोस्ट दे देता है। पर जितना भी कमीशन आया है, सरकारिया कमीशन और जो भी कमीशन आया, सबने ये सेकेंड ARC कमीशन, ये लोग रिकमेंड किया है ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी कंटिन्यूड, क्योंकि वो लोग दे हेल्प इन मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट आता है जाता है तो बीच में कोई डिसीजन लेने वाला नहीं होता है, पर स्टेट में एनार्की नहीं आता है, क्योंकि ये लोग ऑल इंडिया सर्विसेज लोग वहां रहता है कंटिन्यूटी देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को। तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज पे कोई क्वेश्चन आए तो यू शुड राइट दैट इट शुड कंटिन्यू because they are needed to maintain the unity and integrity of India. And the other thing is that during the phase of political instability, they give the continuity to the administrative process. Sir, I have a doubt over here. Sir, Okay. regarding the statement that you've made that the All India Services gives continuity, right, sir? Even if the government changes in the state and the bureaucrats of the state also, I mean, they don't change, right, sir? Because bureaucrats are either way recruited from the state services, Yes. but they are still the permanent executives. So Yes. the continuity issue should not be arising, no, sir? No, sometimes it is there that there is some political instability in the state, na? So there is nobody at the top to take the decision. So that is why they are there to take the decision. कभी कभी CM 2-3 महीने के लिए नहीं रहता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, और या फिर कभी आर्टिकल 356 ही इम्पोज हो, तो डिसीजन लेने के लिए कौन एक तो रहना चाहिए। So what I am trying to say is that they are needed to maintain the continuity to the administrative order. But I did not get your question. Can you repeat? So my question is this, like basically the All India Services people, they are basically the permanent executives, but Yes, yes. even the state people, when they hire like at the undersecretary level from the state, even they get promoted and eventually they will also end up like in very senior In positions. all India service. Exactly, sir. So उस टाइम पे तो like फिर continuity का issue तो arise नहीं होगा, क्योंकि अगर government भी unstable है तो the senior officials from the state services would not be resigning along with the government, isn't it, sir? No, that is your point is right. Your point is means those services also should continue. My point is that there is someone in the state to take the decision, Okay, so that sir. there All right, sir. won't be an anarchy. Your point is valid, and you are right that state service officers are also there in the state to take the decision. I think both state services and central services or all India services, they provide continuity to the administrative process, and that is why all the committees, they recommended that they should continue. Okay. Okay, sir. This is one. I am discussing the reform area. You have to write these reforms only. Even if they are not asking the question, even if these reforms are not asking the question, you have to write. Why I get very good marks in public administration? Because in every question, I wrote all those reforms. And Thank you, there, sir. Point noted, sir. Yes, sir. okay. And so you have to write the reform. And that is why most of the time now I'm discussing reforms only. What are the reforms needed? Right, Like, sir. what in the role of the governor is a very contentious issue, or the problem arises when in the state some other political party are ruling and in the center some other political party are ruling. So central government try to control the state from with the help of the governor, just like this vice president did in West Bengal, and when Congress was in power also they used to do to those states where BJP ruled. So what are the reforms needed for the governor to make him a responsible constitutional dignitaries? कोई बताएगा रिफॉर्म क्या क्या चाहिए गवर्नर के ये में? वो लिखना है, ये कभी होगा नहीं, पर ये लिखना है आपको रिफॉर्म्स. So I think more transparency is needed in the appointment of the governors, like One point. This is some one point. concurrence with the state, I mean, executive perhaps. Okay. That is also there. They discuss with the state government before recruiting the governor, but it is only in the definition. It is not followed practically. Any other reforms? One, you told correctly that this transparency should be there in the recruitment process.
And other thing is that those who are engaged in political activity, or they should not be recruited as governor. So maybe So- governors should also be maybe they should be open to impeachment, I guess. Like, Okay, but this recommendation was not given by any committee. okay, so वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही कहता है, रिफॉर्म शुड बी नीडेड ऑन अपॉइंटमेंट. One reform is needed, that there is no post retirement benefit of governor. So but this was accepted by the government. Now they receive the pension, they get the pension. Means and governor should be recruited from outside the state. ये एक point add होना है. Outside the state ये होना है. और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है गवर्नर को ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ, वही जो हम लोग सब में रिफॉर्म में डालते हैं कि एक कमिटी होना है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होना है, वो उसके एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट रिमूव करना है. ये आप हर जगह डाल सकते हैं, पर मैं आपको देता हूं मैंने क्या और लिखा हुआ है. Try to bring some examples from newspaper also and add in your this class notes. I read only class notes and I added examples from newspapers. Okay, you can note it down. It is not there in the notes. A person from the same state should not be appointed as governor. Number 1 point. The second point is non-political person should be appointed as governor. Non-political person. Those who are active in politics, they should not be appointed as governors. And the other recommendation is governor should be from any eminent walk of life. And the other reform is a person who is appointed as governor should not be eligible for any other position except vice president and president. Because they support, they do all the activities on the instruction of the union government just to get the post-retirement benefits. So one rule should be there that they cannot be appointed to any other position except for vice president and president. These are the recommendation of the Supreme Court only. And what are the federal feature of our constitution? ये एक important point है जो आपके प्रीलिम्स में भी होगा कि फेडरल फीचर क्या है. तो 4-5 मैंने नोट्स में दिया है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, division of power between union and states, independent judiciary, and the council of state whose primary function is to protect the interests of the state. अच्छा, कोई बताएगा what is principle of subsidiarity? To devolve powers to the state, and only center should perform only those functions which the states cannot perform. Rest all the power should be devolved to states or That the is local principle. or the local level. But principle of subsidiarity means, you are right, but principle of subsidiarity means those power which can be best performed by the state should be given to the states, and those function that should be best performed by the union should be given to the central government. And some of the functions are like that it needed the cooperation of both the union and the state. So it is there in the residuary, it is there in the concurrent list. So you are right, but principle of subsidiary means those functions which can be performed best by the state should be given to the state, like police. Police is a state subject. Land is a state subject.
and union function like this railways because then it is needed in all the states of India. तो वो you are right, वो principle of subsidiary कभी कभी पूछता है. Okay, one point is that shifting of subject from the state list to the union and concurrent list. ये क्या है? Shifting of subjects from the, एक तो हमारा 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो एक रिफॉर्म नीडेड है कि it is the tendency of the union government to shift subject from the state list to the union list so that they can make law on those subjects also. I think at the time of independence there was 66 subject in the state list. I think now it is reduced. Can anybody have the latest data? So this tendency should be stopped. The union should not shift the subject from the state to the union list or to the concurrent list. And financial power we will discuss later. Financial issues. Acha, can anybody tell what is cooperative federalism and why cooperative federalism now it is there in everywhere in newspapers or in discussions? Cooperative federalism क्या है और अभी इतना relevant क्यों है और every year cooperative federalism से question आता है. तो cooperative federalism आया ही क्यों इंडिया में? What are the reasons? Reasons क्या है? So places where the government and the center and the state cooperate to achieve certain certain goals, I think, like disaster management and things like that. That is the definition. What I am telling that cooperative federalism क्यों आया? It is a 1990s concept, and before that there was no question of cooperative federalism. It is started from 1990s onward. What are the reasons why cooperative federalism is such a hot topic in India? आया ही क्यों? ये क्वेश्चन आता है, why cooperative federalism? Sir, LPG के बाद से we can say because One point, good point. LPG के बाद ऐसा है कि जो पॉलिसी मेकिंग होता है यूनियन का, सेंटर का और लोकल लेवल का, उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया. एक पॉइंट हो गया. और बाकी there are many points. LPG is one of the point. नीति आयोग establishment sir. इसका नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का abolishment हुआ, फिर नीति आयोग आया. नहीं, नीति आयोग तो अभी एबोलिश हुआ 2015 में. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 1990 से शुरू हुआ. मतलब नीति आयोग is an example of cooperative federalism, but it is not the reason why cooperative federalism came into being. The first point that you said that because of LPG, the policy needed coherence from center to union to states to even at the local level, and that is why cooperative federalism is needed. Or point. 73rd 74th amendments. Second point, 73rd 74 amendment के बाद भी cooperative federalism needed है. उसके बाद coalition politics को भी बोल सकते हैं because of coalition politics like regional parties and all. This is one of the major reason. Coalition politics तो है ही. Coalition politics से ऐसा हुआ कि central government needed the vote of the state government or regional parties, and that is why they started collaborating with each other. पहले जो होता था conflict होता था सेंटर और स्टेट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को कांग्रेस रूल करता था और जहां जहां दूसरा रीजनल पार्टी आता था वो लोग उसको डिसमिस करता था या उनके यहाँ फंड नहीं देता था. जब when नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, सो कांग्रेस गवर्नमेंट वहां पे पैसा देना ही नहीं चाहता था, सब बैकलॉग लगा रहता था. ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने उसको हटा दिया, प्लानिंग कमीशन को भी हटा दिया. सो ये जो आपने बोला कोलिजन गवर्नमेंट, ये भी वन ऑफ द रीजन है. 3 रीजन आप लोगों ने बताया. एक तो LPG, दूसरा 73 और 74 अमेंडमेंट, तीसरा कोलिजन पॉलिटिक्स. और ये आपको आंसर में लिखना होगा व्हाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म is needed in India, and now we are in the phase of cooperative federalism. और मीडिया एक्टिविज्म भी एक रोल प्ले करता है आजकल. अगर कोई
स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो मीडिया भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और इतना सारा डिजिटल मीडिया आने के बाद वो वेरी डिफिकल्ट टू हाइड। अगर इनजस्टिस हो रहा है किसी स्टेट के साथ तो मीडिया पब्लिक को हाईलाइट करेगा और नेक्स्ट टाइम पब्लिक उसको वोट भी नहीं देगा। तो मीडिया एक्टिविज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, एंड द अदर इज वही कोलिजन पॉलिटिक्स की वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड शेयरिंग पावर्स एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस आफ्टर 1990s। और एक रीजन है एंड ऑफ द सिंगल पार्टी रूल बोथ सेंटर एंड स्टेट। 1967 टू 1970 तक सेंट्रल स्टेट का कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी था, कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट में भी था। तो सारा चीज डिसाइडेड सेंटर पे होता था, और वो विदाउट एनी क्वेश्चनिंग state used to implement those decisions. So end of the single party rule at the center and the state is also one of the reason for cooperative federalism. और जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक रीजन है। जुडिशरी भी एक्टिवली सेंटर स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करता है, ये भी वन ऑफ द रीजन है। एंड द पॉलिटिकल कल्चर बेस्ड ऑन कॉग्निशंस। Now from values we are shifting toward cognition. क्या होता है political culture based on cognitions? ये तो पता होगा, ये तो सिंपल पवेट का टॉपिक है। Subjective political culture, नहीं तो we can talk about participative political culture. हाँ वो, but political culture based on cognition means the people will People have vote information. yes, the have- people will vote on the basis of performance, not on the basis of ये religion, caste, culture. People will vote on the basis of performance. वो ये cognition, mind से voting होता है। पता नहीं ये हो रहा है कि नहीं, I don't have any idea. ओके एक क्वेश्चन है मेरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट में 60 सीट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट में 60 सीट है और कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, और एक पॉलिटिकल पार्टी को 29 सीट मिला, एक पॉलिटिकल पार्टी को 5 सीट मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 7 मिला, तो गवर्नर क्या करेगा उस सेंस में? इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, देन व्हाट विल गवर्नर डू? Sir, इसमें कॉन्सेप्ट सरकारी कमीशन ने एक पूरा 4 steps lay down किए थे, like pre-alliance party, he should either check कि pre-alliance majority है, then post coalition, 4 जो सरकारिया ने बोला था। ये तो आपने जो कमीशन का रिकमेंडेशन है वो बता रहा है, तो ये सब तो ट्रू है कि प्री पोल देखना है, पोस्ट पोल देखना है, तो पर ये तो कमीशन का रिकमेंडेशन है ना, ये तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो गवर्नर क्या करेगा? अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी को 28 सीट मिला और एक पॉलिटिकल पार्टी को 21 सीट मिला, तो गवर्नर क्या करेगा? ये इसमें गवर्नर का गवर्नर का डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास इसमें। हाँ, गवर्नर अगर वो 2 पार्टी वाला को भी बनाना चाहे तो बना सकता है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यही है, इफ नो पॉलिटिकल पार्टी गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देन ही कैन मेक एनीवन सीएम। मतलब उसका प्रोविजन ये है कि उसका पर्सनल ओपिनियन में लगना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बना सकता है, और पर्सनल ओपिनियन तो डिफाइन नहीं होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी भी यही प्रोविजन है कि किसी को अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिला तो गवर्नर कैन कॉल एनीवन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये एक इशू है इन केस ऑफ हंग असेंबली। पर वो आप सरकारिया कमीशन का जो रिकमेंडेशन बताया उसको आप एग्जाम में लिख सकता है, बट द प्रेजेंट पोजीशन वही है कि ही कैन कॉल एनीवन। इसलिए गवर्नर का बहुत वाइड रेंजिंग पावर है, ये प्रेसिडेंट के कंपैरेटिवली गवर्नर एंजॉयज वाइड रेंजिंग पावर्स। अच्छा, कोई भी बिल को गवर्नर रिजर्व कर लेता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या रिफॉर्म सजेस्ट करता है बताइए? He can reserve any bill under Article 200 and 201 of the Constitution. इसको ये because he is enjoying absolute power in relation to the state bill, और अगर वो चाहे तो वो गवर्नमेंट को परफॉर्म करने देगा ही नहीं।
तो इसके लिए क्या रिफॉर्म सजेस्ट करता है? आप लोग को याद रह जाएगा इसे डिस्कस होने से। देखिए, कोई भी कमिटी जो है, इसने ये रिकमेंड नहीं किया है कि गवर्नर का ये जो पावर है डिस्क्रिशनरी, इसको वापस लेना चाहिए। ये रहना चाहिए, बिकॉज द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज नीडेड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें ये करना चाहिए कि गवर्नर का कुछ टाइम लिमिट फिक्स कर देना चाहिए कि आप अपना ओपिनियन दे दो कि आप इस पे एग्री करता है कि नहीं करता है। एटलीस्ट नहीं करता है तो बता दो। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नर क्या करता है, वो बिल को रख लेता है सालों साल, उनको पता भी नहीं चलता है कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ टाइम लिमिट बस फिक्स करना है, बट गवर्नर उसमें पावर रहना चाहिए। सब कमिटी ने यही रिकमेंड किया है। just like 2 months, within 2 months he should give the opinion. अच्छा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जीएसटी जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है कि नहीं है? जीएसटी, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा आप लोग कि जीएसटी इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। ये सेंटेंस राइट है क्या? थोड़ा इस पे डिबेट कर लेते हैं। जीएसटी कोई बताएगा? ये हमेशा लिखा मिल जाएगा बुक में, जीएसटी इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑफ इन इंडिया। आप एग्री करता है कि नहीं? एग्री करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? और जीएसटी पे यू विल डेफिनेटली गेट वन क्वेश्चन इन मेंस। कोई तो बोलो कुछ। अच्छा, जीएसटी क्या है? इस पे इसको ही डिफाइन कीजिए। व्हाट इज जीएसटी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. So what is GST? No, nobody is replying. So goods and services tax, basically it is a tax that not being able to do. It is a one tax regime of India where all the Yes. local taxes and all the indirect taxes have been subsumed in one tax. तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल It is क्यों है? because of GST Council की composition, sir, where all the states are given almost 2/3 majority and for the consensus building along with the center. तो यहाँ पे center and state both are coming together and taking decisions. बट आपने जो बोला वो पूरा ट्रू है, पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए जीएसटी में 75% वोट चाहिए। आपने जो बोला कि 66% स्टेट को दिया है, 33% सेंटर को दिया है, पर यही एनालिसिस ही लिखेगा, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। पर लेकिन उसमें तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए 75% वोट चाहिए। तो अगर सारा स्टेट यूनाइट हो गया कोई कारण की वजह से, तब भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सर यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, इसमें ये इशू है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बोल सकते हैं इसको। नहीं, ये यूनिटरी फीचर हो गया जीएसटी, क्योंकि वो लोग पूरा, इफ द ऑल द 29 स्टेट्स यूनाइट, देन आल्सो दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजन, क्योंकि 33% सेंटर के पास है। सेंटर उसको अगर एग्री नहीं किया तो 75% हुआ ही नहीं। तो कोई ये कितना केयरफुली क्राफ्टेड है
कि पूरा स्टेट को 66% दे दो, खुद के पास 33 रखो, और लगेगा कि हम लोग जो है पावर को डिवॉल्व कर रहा है। पर ये तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया ना। वो लोग ना कभी टैक्स चेंज कर सकेगा, ना टैक्स रेट चेंज कर सकेगा, उनको कंपेंसेशन ना भी मिले फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉर डिसीजन यू नीडेड 75% वोटिंग। तो अगर जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया और अगर आपने ये पॉइंट को हाईलाइट किया, देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। मीन्स द रिफॉर्म इज नीडेड, और रिफॉर्म ये होना है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए 66% वोटिंग एनफ होना है, ताकि अगर ऑल द स्टेट्स यूनाइट हो जाएगा तो कम से कम हम लोग कुछ तो चेंज कर पाएगा। पर यूनियन गवर्नमेंट इतना केयरफुली क्राफ्ट किया, और उसका उसका डिसीजन का 75% वोटिंग राइट, वो लोग ये रखा कि 75% होगा, देन देयर विल बी चेंज इन द जीएसटी। सो जीएसटी लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, बट ये यूनिटरी फीचर्स है। तो इसीलिए स्टेट्स जो है एल्कोहल और ये लिकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसमें रखना नहीं चाहता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी जीएसटी से रिलेटेड ये आया था, शायद मैंने लिखा था इसको। और इलेक्शन कमीशन में भी आप एक रिफॉर्म लिख सकता है कि इलेक्शन कमीशन यूनिटरी फीचर्स है इंडिया का। इलेक्शन कमीशन स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पर दे आर अपॉइंटेड यूनिलैटरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो स्टेट शुड आल्सो बी इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन को यूनिलैटरली अपॉइंट नहीं करना है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ सब सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन है, मैंने पॉइंट वाइज में लिख रखा है, ये कोई हम खुद से नहीं बोल रहा है, तो आप लोग एक्सेप्ट कर लेना इसे। सर आपने ARC2 के लाइक शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? मतलब मैंने ऐड करता चला गया नोट्स में ही जो मेरे पास है, जो आपको मैं नोट्स देता रहूंगा। आज तो मैंने कम दिया, मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, कल मैं पूरा ही नोट्स दूंगा जो भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो रहेगा वो सब सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन रहेगा। पर जब आप आंसर लिखे तो ये ना लिखे कि इट इज रिकमेंडेड बाय सेकेंड ईआरसी, ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी याद नहीं रहता है, जो पेपर चेक करते हैं कि ये कहाँ का रिकमेंडेशन है, तो वो सर अच्छा दिखेगा। बट सर लाइक आंसर राइटिंग में इज एडवाइस टू कमिटीज के नाम लिखना राइट फॉर नहीं रिकमेंडेशन नहीं नहीं, मैं नहीं लिखता था किसी में, तभी तो लगेगा ना ओरिजिनल लिख रहा है, खुद लिख रहा है। खुद तो कुछ आता नहीं है ना हमें, हम लोग तो उन्हीं से कॉपी करते हैं, पर ऐसा दिखना चाहिए कि हम लिख रहे हैं, फिर तभी मार्क मिलेगा। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता था कि ये सेकेंड ईआरसी का रिकमेंडेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड, द फॉलोइंग रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड। अच्छा, कौन कौन से केस में जो है यूनियन गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट का ऊपर लॉ बना सकता है? 5 केस है, ये एवरी ईयर आपको मिलेगा प्रीलिम्स में, वो 5 केस याद रखना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस the central government can make laws or the parliament can make laws from the state subject? पता होगा आप लोग को, बताइए। एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस लिखे हैं टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस। हम्म And if your optional is public administration, then this question you will invariably get in UPSC interview also. They ask me about under what circumstances the parliament can make laws on the state list. One point is to give assent to international treaties, international relation. दूसरा 253 है, वो मैंने दिया है आपको इसमें। when states ये- them when states themselves ask for center's advice, हम्म and then Rajya Sabha can also themselves for any security matters. यस यस। बस इतने नाम से।
ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज, इंडियन फेडरेशन और यूएस का फेडरेशन में क्या क्या डिफरेंस है? एक हमारा टॉपिक है ना, कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियन फेडरेशन यूएस का फेडरेशन में क्या क्या डिफरेंस है? So the US Federation, the states have the option of seceding from the Federation, but in India they don't, I think. Yes, one point. Yes. Good point. Yes. Also, the states are very strong in the sense that there is dual citizenship in the US and India only has single citizenship. और वन स्टेट लॉ में वहां का एक पॉइंट ये भी है कि एक स्टेट का लॉ दूसरे स्टेट का लॉ से अलग होगा। जैसे अभी वो जो केस आया था वोमेन का ये रिलेटेड, तो एक स्टेट में कुछ और लॉ है, दूसरे स्टेट में कुछ और लॉ है, तो वो स्टेट का लॉ भी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, और Yes. एक तो और क्या डिफरेंस है दोनों का फेडरेशन में? और वो लोग I का think the ट्रू residuary फेडरेशन powers are vested in the federate in the respective इन द states in the स्टेट। हाँ US. हाँ, राइट राइट। द रेजिडरी पावर उनका स्टेट में है, और रेजिडरी पावर हमारे यहाँ सेंटर के पास है। Center. और स्टेट्स आर इक्वली रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। एक ये भी कहे है, सीनेट में 100 सीट है, 2 seats each. 2 सीट्स ईच। हमारे यहाँ पॉपुलेशन के बेसिस पे है, यूपी जो है वो ये ज्यादा ये पर Maximum. यूपी का हाँ मैक्सिमम 31 सीट्स है। तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को पता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स का, और वो ट्रू फेडरेशन है, और जो स्टेट्स है वो वॉलेंटरीली आया है उनके पास। ये भी आप प्रीलिम्स में हमेशा दिखेगा, उनका स्टेट जो है वो वॉलेंटरीली मिल के बना है। हम लोग का ऐसा वॉलेंटरीली नहीं है, मतलब स्टेट्स। तो ये भी एक ये है। और हमारा ऑल प्रैक्टिकल पर्पज से यूनियन गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, उनका उतना पावरफुल नहीं। हमारा तो अगर 2/3 मेजोरिटी हुआ तो स्टेट नॉन एग्जिस्टेंट टाइप का ही है, बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही हम लोग स्टेट बना के रखे हैं। वो लोग जब चाहे डिसमिस कर सकता है, जब चाहे ये कर सकता है, पर ये होगा नहीं। पर हमारे यहाँ स्टेट्स इतना पावरफुल नहीं। दूसरा प्रॉब्लम हमारा स्टेट्स का ये है कि फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल पावर 70% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये पॉइंट भी आप लोग लिखिएगा, 70% of the functions are performed by the state government, but the 70% finances are there in the hands of the central government. फंक्शन 70% स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करता है, बट फाइनेंसेस उनके पास 30% ही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शंस 30% परफॉर्म करता है, बट फाइनेंसेस उनके पास 70% है। तो फाइनेंशियली भी इनवेरेबली फेवर उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेगा, 70% फंक्शन, 30% फाइनेंसेस, 30% फाइनेंसेस, 70% फाइनेंसेस, 30% फंक्शन। दिस लाइन यू कैन एड इन योर आंसर्स। तो यूनियन स्टेट रिलेशन में तो इतना ही है। बाकी तो बाकी तो वो फाइनेंशियल रिलेशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस वाला चैप्टर में। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ज्यादा इसको प्रिपेयर कर नहीं पाया ये, कि जब भी मोरालिटी का ये लिख लीजिएगा। हाँ, मैं डेली आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, तो आज का रह गया था। जब भी मोरालिटी का क्वेश्चन हो, या फिर ऐसे राइटिंग में मोरालिटी और गुडनेस का बात हो, तो संथल रेबेलियन सबने सुना है? संथल रेबेलियन क्या है बताइए तो। उस पे मैं ऐसा ऐसा बताऊंगा जो आपको पता नहीं हो। संथल रेबेलियन के बारे में बताइए।
कहाँ हुआ था, क्या था, पता है आप लोगों को? So tribals in Jharkhand, I think. I'm not sure. Yes. Okay, anyone? You know the tribals in Jharkhand and Chhattisgarh and this West Bengal. But rebellion पता, आप लोग हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ा है? Against the Zamindari system, I think. I don't remember exactly. ओके, होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो हिस्ट्री का बात है। मैं बताता हूँ, जब संथल रेवेलियन हुआ था सिद्धू और कानू 1856 में, तो इन लोगों ने रिबेल कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर लोग बहुत इंटरफेयर कर रहा था, उनका लैंड और उनका फॉरेस्ट राइट सब उनका ले रहा था। तो उन दोनों का बीच में वार हुआ, संथल लोगों के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो संथल लोग 30,000 के आसपास इकट्ठा हुए वार करने के लिए। तो उन लोगों का जो लीडर था सिद्धू और कान्हू, उन्होंने कहा कि हम लोग जो वार है वो मोरली करेक्ट वे से लड़ेंगे। तो मोरली करेक्ट वे से लड़ेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, जो उन लोग का बोज एंड एरोस होता था, तीर जो होता था, वो जो उसका ऊपर में वो लोग जहर लगाते थे। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग ये सब हटा देते हैं, तभी जो है मतलब हम लोग मोरली गुड होके ये लड़ेंगे। और उस साइड गन है, इनके पास बोज एंड एरोज है, और एरोज से भी इन लोगों ने पूरा 30,000 एरोज से वो जो पॉइजन है वो हटा दिया था। तो जब ब्रिटिशर लोग को वो एरो लगता था, तब भी उनको कुछ नहीं होता था, वो लोग निकाल के फेंक देते थे। 30,000 का 30,000 पूरा ही ट्राइबल मारा गया, पर वो लोग अपना मोरालिटी के ऊपर में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जब भी इंडियन मोरालिटी के बाद आए तो ये एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा कि हम लोगों के मतलब ये कितना अच्छा है बुरा है, ये मेरा कोई ये नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि अगर मोरालिटी का बात आता है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, कोई भी वार में, तो संथल रिवेलियन से ज्यादा मोरली गुड और करेक्ट वार कोई नहीं। ब्रिटिशर लोग उस समय में उनके पास गन होता था, उससे लड़े थे, और ये लोग 30,000 से एक आदमी भी नहीं बचा, सब मर गया। तो ये पॉइंट कहीं पे मौका मिले तो आप लोग लिख सकता है। ये मैं पहले ऐसे में लिखा था, तो उसमें बहुत अच्छा नंबर आया था मेरा। ठीक है, तो फिर आज यहीं रहने देते हैं, आज थोड़ा सा कम हुआ। कल हम लोग 8:30 से 10 तक 1.5 आवर में पढ़ेंगे, और मैं थोड़ा अच्छे से आप लोग के लिए नोट्स बना दूंगा आज, कल जो Thank you, sir. टॉपिक होगा। ठीक है, और कुछ कुछ आप लोग भी ये लाए, कुछ क्वेश्चन भी लिखे, जैसे कि इस पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, हम ग्रुप में क्वेश्चन दे देगा, आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन। ग्रुप में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, एक क्वेश्चन, और लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। Okay, ठीक sir. है, ठीक है, फिर तो आज यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग अच्छे से करेंगे क्लास। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। सो थैंक यू सबको, कल मिलते हैं।